ہماری جماعت اسلامی وہ واحد پارٹی ہے جو کلمے کی بنیاد کے اوپر بنی ہے. یہ سرخی پاؤڈر اور فیس بکیوں اور بیوٹی پارلروں والی پارٹی نہیں ہے. روٹی کماوے کھاوے زیور بیچ کے بندہ پیسے جمع کر بل جمع کرائے کی کرے. بل گھر میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ گھر میں جناب بیلی ادھر چکی لائی اتنے بڑی وہ یار پکھے لائے تو میں کوئی کاروبار ہیٹر اتنے چلانا جناب. ڈی چوک نہیں جائیں گے، اگر ہم جائیں گے تو پھر پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے. بم گرایا جاتا ہے تو عوام کے اوپر گرایا جاتا ہے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ جو بم گرایا جا رہا ہے اس کو بند کر دو، تو یا جو ایٹم بم بنایا اس عوام کے اوپر گرا کے اس کو ختم کر دو. کہ ہمیں یہاں پر 2 ماہ رکنا پڑا تو انشاءاللہ العزیز ایک کارکن بھی یہاں سے نہیں جائے گا، اور ہم اپنے مطالبات کے اوپر ایک رتی برابر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لوگوں کے چولہے بند ہو گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست انس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نورس میڈیا پلس. اس وقت میں موجود ہوں لائقت باغ میں. یہاں پر جماعت اسلامی کا دھرنا ہے. اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں عوام کی طرف سے کیا مطالبات لے کر آئے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام کیا ورحمۃ. مطالبات لے کر آئے ہیں؟ مطالبات میرے یہ ہیں، میں یہ سوچتا ہوں اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس عوام کو. سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں وہ کدھر جاتا ہے. ان کو ٹول پلازا سے پیسہ آتا ہے، ان کو بجلی کے بلوں سے پیسہ آتا ہے، ان کو فیکٹریوں سے پیسہ آتا ہے. وہ کاغذوں کا کیا کرتے ہیں؟ یہ کاغذ نہیں رکھتے. یہ جتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس کا یہ سونا خریدتے ہیں. یہ اپنی تجوریوں میں سونا رکھتے ہیں. کاغذ ان کے کسی کام کے نہیں ہے. انہوں نے سونا اکٹھا کرنا ہے، اپنی تجوریوں کو بھرنا ہے، پھر انہوں نے لندن جا کے بیٹھ جانا ہے. ان کا یہ صرف اور صرف ایک ہی کام ہے، ادھر سے اکٹھا کرتے ہیں. ہماری غریب عوام جو ہے وہ باہر جا کے کام کرتی ہے، ڈیوٹی کرتی ہے، ورکر کے کام کرتے ہیں. یہ ادھر سے آتے ہیں ادھر کام کرنے کے لیے، ادھر سے سونا اکٹھا کرتے ہیں، ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈالروں میں جا کے سیل کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. بس اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جائے تو کیا کریں گے آپ؟ ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو اوپر والا جو بیٹھا نا وہ خود بخود ان سے حساب لے گا. ٹھیک ہے. ان کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بیمار ہیں، ہم سے چلا نہیں جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے. جس دن اس اوپر والے نے ان کو بیمار کیا نا یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو ہمارے مطالبات ماننے پڑیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کہاں سے آئے ہیں؟ ایبٹ آباد سے. کیوں آئے؟ دھرنے میں آئے مہنگائی کے خلاف. بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ہم افورڈ نہیں کر رہے ہیں. بہت مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے، گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے. اس لیے ہم دھرنے میں جماعت اسلامی کے ساتھ آئے ہیں. وجہ کیا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ؟ جماعت اسلامی اس ملک کے عوام کی بات کر رہی ہے، ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہے. اس لیے ہمارے حقوق کی بات کر رہی ہے، پاکستان کے قوم کے حقوق کی بات کر رہی ہے. اس لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ آئے ہیں. اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ کیا کریں گے؟ جتنی دیر تک جماعت اسلامی کی قیادت ہمیں کہتی ہے ہم اپنے حقوق کے لیے، اپنے مطالبات کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں گے. جی آگے چلتے ہیں. اور السلام علیکم چاچو، کیسے ہیں؟ السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کہاں سے آئے ہیں؟ میں پنڈی کا ہی ہوں. پنڈی کا رہائشی ہے. کتنے دن سے یہاں پر ہیں؟ پہلے میں ڈی چوک گیا تھا تو اب یہاں پہ آیا ہوں. وجہ کیا ہے اور کیوں یہاں پر موجود ہو؟ اس لیے کہ جو حالات اس وقت ملک میں پیدا کر دیے گئے ہیں، ہر طرف افراتفری ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ایک بلب جل رہا ہے تو اس کا بھی 5-6 ہزار روپیہ بل آ رہا ہے. اور اسی طرح دوسرے ٹیکسز جو ہے وہ انہوں نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. مہنگائی عروج پر ہے. اسی کے خاتمے کے لیے جو نعیم الرحمان صاحب نے یہ آواز بلند کی ہے. باقی تو اپنے اپنے کام کے لیے لگے ہوئے ہیں، اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے لگے ہوئے ہیں، یا یہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ واحد آدمی ہے جو بے لوث ہو کر نکلا ہے، جس نے کراچی کے عوام کو جگایا اور اب پورے پاکستان کو جگانے. اچھا چاچو، اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ کیا کریں گے؟ جو ہمارا قائد کہے گا ہم وہی کریں گے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کہاں سے آئے ہیں؟ پنڈی سے آئے ہیں. پنڈی سے آئے ہیں. جی ہاں. کیا مطالبات لے کر آئے ہیں؟ ایک تیرے سامنے کتنا لاکھ روپیہ بل آیا مہینے کا. بندہ کرے کیے تو کیوں آئے ہیں لائک ایک پڑھ کتنا بل؟ ویک نہ پڑھ سے نہ کتنا بل ہے. ساری مت مار چھڑی غریب بندے دوے بل اچھا یہ چاچو کا بل جمع کرایا 21,28,000 جمع کرایا. وہ ویک تیا ویک ایک بل آئے کہ 90,000 روپے بل آئے ہیں. 2 مہینے کا 90,000. 10 کی بندہ کرے. اچھا اچھا. اس کے بعد جو ہے دوسرا ہے 20,000. یہ جمع کرایا 50,000 سی. یہ تو 20-30,000 جمع کرایا ہے. کی بندہ کرے 10 قسم نے جائے یار.
ਰੋਟੀ ਕਮਾਵੇ ਖਾਵੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਕੀ ਕਰੇ बिल घर में क्या इस्तेमाल करते हैं? ਘਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਉੱਧਰ ਚੱਕੀ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀਟਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾਨਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੂ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ वही कह रहा हूँ ना कि आपके क्योंकि ज़्यादा अभी जितने बिल है ना जुल्म ਯਾ ਜ਼ੁਲਮ ਲਾ ਰਹੇ ਵੇਖ ਜੂਨਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਡ ਕੇ ਦਈ ਆਉਂਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ क्या काम करते हैं? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਦੀ 1500 ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਤਰਿਆ ਮੀਟਰ ਲੱਥੇ ਪਏ ਵਿਹਲੇ ਉਂਝੇ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਯਾਰ नोटिस बिल है नहीं जमा किए तो टाइम हो गया। ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਲੈ ਗਏ ਬਸ ਉਂਝੇ ਪਏ ਆ ਉਂਝੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਬਸ ਬੈਠੇ ਆ अच्छा ਯਾਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਜ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ 90000 ਕਿਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 महीने का 90,000 रुपए बिल है। मैं पहले जमा कराया 28,000 जमा कराया पहले करा के फिर मैं किस्त कराई मुन जान जरा लवाने वास्ते उन्हें आख्या भी बिल जमा कराएगा 50,000 पहले जहाँ तान लगाएगा 2 मीटर केड़ा बंदा जुल्म में दस केड़ा की हो सकता है यार मजदूरी कमा हमारे मुल्क के हालात है। हालात पता की इन्हें बिल दे सकना तू तेरी तनख्वाह ही 20,000 होवे तू बिल 50,000 दे सकना महीने का है इन्ना जुल्म में लुट मुट के जाना है बाहर जमात इस्लामी धरने में आए हैं क्या मुतालबात लेकर? मतलब क्या साडा केड़ा सी इस तो आए चल वेख तक शुक्र है जरा निकले लोग बाहर मैं तो सारी आवाम बाहर निकले खंबे पट के अपने लै जान बिजली लै जान बंद कर देन असं 2 महीने नहीं गुजारा कर ले अपने घर खड़ना अर्श है यार जिन्होंने लोगों ने दलील की है महंगाई किन्नी है डालडा लैन जा दिहाड़ी लगती कोई नहीं किसी की इन्हों को सोचना चाहिए इन्होंने यार साढ़े हुकूमत यार गरीब का सोची है कोई सोच रहा इन्हें सिर्फ अपन गड्डियां पजारो तेल फ्री बिजली फ्री इस्त्री फ्री हर शे फ्री इन्हों की ये साढ़े वास्ते साढ़े कोई परवाह नहीं ये पाकिस्तान पाक मुल्क है ये नहीं हार सकता ना मुक सकता ये ज्यों दिल पे लुटन लुट के किन्नी बजे लुट बैठे उंजी चलता है पे ये चाचू का बिल था और 90,000 रुपये बिल था ये हालात है हमारे मुल्क के। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल खैरियत। अच्छा जमात इस्लामी धरने में आए क्या मुतालबात लेकर आए हैं? इस चाचू का जो बिल है 90,000 रुपये 2 महीनों का है। ये देख लें ये गवर्नमेंट ने जो जुल्म सारी अवाम पे डाला हुआ है बम गिरा रहे हैं और गरीब अवाम अपना किराया नहीं दे सकते वो किस तरह मतलब बिल अदा करेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि जो भी अजाफी टैक्स हैं ये फौरी तौर पर इसको ख़त्म किया जाए और ख़ास तौर पे ज़राअत हमारी जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है उसको इन्होंने तबाह कर दिया है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं जो ट्यूबवेल वगैरह लगाए हैं पानी के बगैर आपको पता है कि जीना महाल है और फसल भी नहीं हो सकती और फसलों के लिए जो ट्यूबवेल लगाए गए हैं उनका इतना बिल ज़्यादा है कि ज़मींदार बिल अदा नहीं कर सकता। जब इतनी खादें महंगी हैं बिल इतने ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट जब ये हमारी फसल तैयार होती है और ये रेट भी नहीं देते। हमारा ये मुतालबा है कि सारी जो चीज़ें इन पर टैक्स जो इजाफी हैं ये ख़त्म किए जाएँ और ख़ास तौर पर जो अशराफिया है इनकी सहूलियात जो इजाफी इनको बिजली के बिल जो सहूलियात दी जाती इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा आपके अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो आप क्या करेंगे आगे? हमारा ये अमीर पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की काल पे आज जलसा है और जलसे के बाद जब इन्होंने अगर मुतालबा नहीं माने तो फिर हम इनका डी चौक के आगे भी इंशाल्लाह हम इनके गिराव करेंगे असम्बलियों का भी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आप क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं आया हूँ बेसिकली पेशावर से पेशावर से सिर्फ जलसे के लिए? जी धरने के लिए जलसे के लिए नहीं आए धरने के लिए। आज हमारा तीसरा दिन है कि यहाँ पे हम बैठे हुए हैं ना कोई यहाँ पे एसी लगा हुआ है ना कोई पंखा लगा है हम धूप में बैठे हुए सिर्फ इसीलिए बैठे हुए कि 25 करोड़ का अवाम का जो मुकदमा जमात इस्लामी लड़ रही है इन अवाम को हक मिल सके। अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो अब दूसरा प्लान क्या है? मुतालिबात मानेंगे नहीं मानना सवाल ही पैदा नहीं होता कैसे नहीं मानेंगे। हम यहाँ पे बैठे पूरे 25 करोड़ अवाम जो है वो हमसे उम्मीद लगा के बैठी हुई है हम यहीं पे बैठे रहेंगे और सिर्फ यहाँ पे नहीं हम डी चौक जाना कोई बड़ी बात नहीं है हम पहले ही दिन चले जाते हैं लेकिन हम अपने अमीर के हुक्म के मुताबिक जो वो हुक्म देंगे हम वहाँ जाएंगे डी चौक नहीं जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो फिर पार्लियामेंट हाउस जाएंगे और जहाँ तक मुतालबात की बात है मुतालिबात इंशाल्लाह माने जाएंगे और जब तक नहीं मानते हमारा ये धरना भी जारी रहेगा और इंशाल्लाह जैसे अमीर साहब का हुक्म आएगा पूरे पाकिस्तान को बंद करके दिखाएंगे। अच्छा दफा 144 लगाया हुआ है गिरफ्तार करते हैं आपके कितने वर्कर गिरफ्तार हुए? देखिए 1000 प्लस तक वर्कर गिरफ्तार है। दफ़ा 144 इनसे हमें न डराएं
दफ़ा 144 ये जो कानून है ये गलत इस्तेमाल करते हैं। दफ़ा 144 क्या हम मुजरिम हैं? क्या हम दहशतगर्दी करने आए हैं? ये जो बुज़ुर्ग, ये बच्चे, जवान जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? हमें जमात इस्लामी को कुछ नहीं चाहिए, हमें ना अपनी ज़ात के लिए कुछ चाहिए। हम 25 करोड़ आवाम, ये आपने गुज़श्ता दिन देखा होगा जो फैसलाबाद में भाई ने भाई को मार दिया 30,000 रुपए की वजह से, क्यों? इसका ज़िम्मेदार कौन है? जब तक IPPs के जो मुआहदे वो ख़त्म नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी चाचू, आप क्या मुतालबात लेकर आए हैं? देखें जी, हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि यहाँ पे जो बिजली के बिल हैं और आवाम को पीसा जा रहा है, और आए दिन ब दिन एक महीने के अंदर 3-4 मरतबा बिजली महंगी हो जाती है और आवाम को पीसा जाता है, जबकि इनके बड़े मराहत लेते हैं और उनके ऊपर कोई जो है वो बिजली भी फ्री, पेट्रोल भी फ्री, बम गिराया जाता है तो आवाम के ऊपर गिराया जाता है। हम इसलिए आए हैं कि ये जो बम गिराया जा रहा है इसको बंद कर दो, तो या जो एटम बम बनाया इस आवाम के ऊपर गिरा के इसको ख़त्म कर दो, ताकि कोई तुम्हें को पूछने वाला ना हो। हम यहाँ पे बैठे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान साहब वहाँ पे हम उनकी कॉल पे जमा हैं। आज तीसरा दिन है, हम उनकी कॉल के मुंतज़र हैं। जो ही उनकी कॉल आएगी हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पहले भी ऐसे होता रहा है माजी के अंदर, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। और हमें ये भी पता है कि ये किस बात की मूली है, किस चीज़ के सहारे पे खड़े हैं। ये 47 फार्म की पैदावार है, ये जैली हुकूमत है, जैली मैंडेट है और लोगों के ऊपर जुल्म करते फिरते हैं। इसलिए हम जमा हैं, इंशाअल्लाह हम अपने हकूक़ लेके जाएंगे। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, चाहे हमें 1 महीना 2 महीना भी यहाँ पे बैठना पड़े, हम बैठेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, रात को जिस तरह बारिश थी, आप यहाँ पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, हम बारिश के अंदर मौजूद थे। इधर साथ जो है वो हमारे खेमे लगे हैं लियाकत बाग के अंदर, लोग यहाँ पे मौजूद थे और यही रात गुजारी है हमने। हमें ना बारिश की परवाह है, ना गर्मी और धूप की परवाह है। इंशाअल्लाह हम हमारे इरादे बड़े मजबूत हैं और ये बड़े मजबूत कारकुन हैं, जिनके बारे में सैयद मदूदी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि ये लोहे के चने हैं, जो इनको चबाने की कोशिश करेंगे दांत उसके टूटेंगे, इनके इंशाअल्लाह दांत टूट जाएंगे। अच्छा, दफ़ा 144 लगाया हुआ है उस, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कर्स गिरफ्तार भी किए, गिरफ्तारी के भी चांसेस है, तो फिर भी आप यहाँ पर बैठे हुए? हमें ना जेलों की परवाह है, ना गिरफ्तारों की परवाह है। पहले भी हम गिरफ्तार होते रहे, पहले भी हमें गोलियों का सामना, शेलिंग का सामना, जेलों का सामना करना पड़ा है और हम इस बात की कोई परवाह नहीं करते। 96 के अंदर मैं बिल्कुल छोटा था और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर मैं यहाँ पे मौजूद था। यहीं पे मेरे आंखों के सामने एक वर्कर के जो है वहाँ पे गोली लगी थी और मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था। हम यहाँ पे मौजूद हैं 98 के अंदर, जब नवाज शरीफ का दौर था वहाँ भी हम, फिर 99 के अंदर लाहौर के अंदर वाजपेयी है, वहाँ भी मैं मौजूद था। अल्लाह के वजह से हम डरने वाले नहीं हैं, ना गोलियों से, ना जेलों से, ना दफ़ा 44 से। दफ़ा 44 क्या है? ये इनका ड्रामे है, एक हौसो हवाज फैलाने के लिए लोग बाहर ना निकले। ये जमात इस्लामी है, जमहूरी जमात है, आइनी जमात है, ये अपना हक लेना जानती है, इसलिए हम अपना हक लेने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। जी भाई, आप क्या मुतालबात लेकर आए हैं? मेरे भाई 25 करोड़ आवाम का मुकदमा लेकर आए हैं हम, कि जिस तरह ये IPPs का गोरख धंधा जो है, इसके तहत इन लोगों ने इस कौम को कंगाल कर दिया है। और आज हमें ये पता चला है कि ये IPPs के सारे बेनिफिशरीज़ जो हैं ये इस वक्त हुकूमत में हैं, जबकि हमें ये पहले ये कहते रहे कि जी ये बाहर की कंपनीज़ हैं। तो अर्ज़ ये है कि ये जो आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ऊपर ये जो एक एलियट क्लास है, सारी मराद जिनके लिए हैं, बिजली इनकी फ्री, गैस इनकी फ्री, हर तरह के जो फैसिलिटीज़ हैं वो इन लोगों के लिए हैं, और हर तरह की महंगाई, जो हर तरह की परेशानी वो आवाम के लिए है। तो हम यहाँ पर आवाम का मुकदमा लेकर आए हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जैसे कि अमीर जमात मोहतरम ने फरमाया, हम यहाँ आवाम का मुकदमा जीत कर जाएंगे। इस हुकूमत को शायद इस बात का कोई शक है, हमारी एक तारीख़ है, हमारी एक हिस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, और जमात इस्लामी पाकिस्तान की तारीख़ इस बात की गवाही देगी कि जिस मौक़िफ़ को लेकर जमात इस्लामी चली है, जमात इस्लामी ने उसको विन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जमात इस्लामी का कारकुन नज़रियाती कारकुन है। जमात इस्लामी के लोगों को ये जो हरासमेंट इन लोगों ने फैलाई हुई है, ये दफ़ा 144 जो है, ये इस चीज़ को जमात इस्लामी के लोग अपने जूते की नोक पे रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह कायदे मोहतरम ने फरमाया कि हमें यहाँ पर 2 माह रुकना पड़ा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक कारकुन भी यहाँ से नहीं जाएगा और हम अपने मुतालबात के ऊपर एक रत्ती बराबर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यही आवाज़ कायदे मोहतरम अमीर हाफिज नईम उर रहमान साहब की है। यहाँ आप किसी से बात करके देखें, इंशाअल्लाह उसके मुँह से भी आप यही सुनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
जी चाचू, आप क्या मुतालबात लेकर आए हैं? हम ये मुतालबात लेकर आए हैं जनाब, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम जो है इस बिजली के भारी बिल जो आ रहे हैं, लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं, लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं। और ये जो हुक्मरान तबका है, ये इनके अंदर सारियाँ पार्टी हैं, आज तक इन्होंने मुल्क के लिए, अवाम के लिए कोई अच्छाई नहीं सोची, ठीक है ना। ये अपनी मराद बढ़ा रहे हैं और गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की अवाम इनको टैक्स भी देती है, माचिस की डिबिया से लेकर और डिस्प्रेन की गोली तक ये टैक्स हम पे करते हैं, लेकिन हमारा ये टैक्स ये अपने जो है ना लल्ला तल्ला में खर्च कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, जो IPs के जो लोग हैं, ये इनके अपने हैं, हम उनका बिल भी जो है ना वो भर रहे हैं, जो हमें बिजली नहीं दे रहे, कैपेसिटी चार्ज के नाम पर भी ये बिल दे रहे हैं, अदर चार्ज। ये देखें ना, 40 किस्म का टैक्स है बिजली के बिल के अंदर, 40 किस्म का टैक्स। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है या 40 किस्म का टैक्स बिल की मद में लगाया जा रहा हो। अभी ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम निकली है, 3 रुपये यूनिट वो बिजली ले रहे हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह दूसरे मुल्कों के अंदर जमहूरी तरीके से जदोजहद हम कर रहे हैं। हाफिज नईम उर रहमान साहब पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे, और ना वो अपना जो है ना अपनी जमात के लिए को लड़ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये मुकदमा जीत कर जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए? बहावल नगर। वजह क्या है? देखें जी, वजह सिर्फ इतनी है, हाफिज नईम उर रहमान अमीर जमात इस्लामी ने ये धरना दिया है रावलपिंडी में, जो इंशाअल्लाह ताला आज उनके हुक्म के ऊपर डी चौक पे जाएगा इंशाअल्लाह। 25 करोड़ अवाम का ये धरना है। कोई जमात इस्लामी वो वाहिद पार्टी है जो कलमे की बुनियाद के ऊपर बनी है। ये सुर्खी पाउडर और फेसबुकियों और ब्यूटी पार्लरों वाली पार्टी नहीं है, कोई फिरका वारियत वाली पार्टी नहीं है, ये नून लीग और पीपल पार्टी के गंदे अंडों वाली पार्टी नहीं है। कलमे की बुनियाद पे बनने वाली सबसे बेहतरीन सादिक और अमीर लीडर हाफिज नईम उर रहमान की ये पार्टी बिजली के बिल कम करवाने आई है, IPPs के मुआहदे रिवाइज करवाने आई है, सियासतदानों की हर तरह की मराद और तनख्वाहों को बंद करवाने आई है, और 20 ग्रेड के ऊपर के अफसरों के सैलरी पैकेजेस को रिवाइज करवाने आई है। और ये जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की क़यादत में ये अपने हकूक लेके उठेंगे। 25। अच्छा, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते, आप क्या करेंगे? अगर हमारे मुतालबात ना माने गए ना, ये मरियम और उसका चाचू और जरदारी और उसकी औलाद का सियासी जनाजा उठाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। हमारे लीडर अमीर हाफिज नईम उर रहमान के कॉल के मुताबिक डी चौक भी जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पे भी जाएंगे, हर CM हाउस के आगे, हर गवर्नर हाउस के आगे दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाअल्लाह ताला। आप इतनी गर्मी में शदीद गुस्से में, क्या वजह है? बाबा, ये गर्मी नहीं है, ये तो वो तपिश है जिसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ही फेंका गया था, और वो वहां से निकले हीरा बन के साबित कदम निकले। हम भी साबित कदम निकलेंगे। जमात इस्लामी साबित कदम रही है, साबित कदम निकलेगी। हमसे ये नहीं देखा जाता जमात इस्लामी से कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम मजीद पिसे। हम हक लेके उठेंगे अवाम के लिए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।